चलिए पढ़िए उसको। अब वो किताब दी गई है ना, उसको पढ़िए। किताब निकालिए ना, निकालिए और पढ़िए उसको। इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है। आपके पास किताब है, निकालिए और उसको पढ़िए। नहीं है क्या? मैम डाउनलोड कर रहे हैं मैम उसको, तो हाँ, हम सिस्टम को फॉर्मेट किए तो वो भी डिलीट हो गया था। कर लो। मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। शेयर करो ना तुम, मैम सुन रही है। पढ़िए आप लोग, शेयर करके पढ़ो तुम कंटेंट को। पढ़िए। जिसको जो समझ में नहीं आए वो लेसन लेके पढ़ेंगे। और अगर क्लास खत्म हो गया है तो फिर इसको क्लास को उठा देते हैं। फिर अब वो कुछ पूछना भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है, तो फिर राजवर्मा क्या हुआ? पढ़ो ना भाई। मैम डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है मैम, अभी एक वो मिनट में शेयर चीजें करते हैं मैम। तैयार रखिए आप अपने साथ। किताब हमेशा सामने होनी चाहिए। आई टोल्ड यू टू प्रिपेयर द क्वेश्चन आंसर और गिफ्ट ऑफ में जाए। वो तो कम से कम सुनाइए। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है, आप लोग कुछ होमवर्क भी नहीं करिएगा। मैम स्क्रीन विजिबल है मेरा मैम। क्या? मैम स्क्रीन विजिबल है मैम, शेयर किए हैं मैम।
हाँ 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 है। जो भी समझ में नहीं आया है, वॉट एवर यू हैव नॉट अंडरस्टूड, उसको पढ़िए। मैम इस चैप्टर में थोड़ा हमको समझ नहीं है मैम, यही पढ़ना था मैम। द डॉल हाउस बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ये नहीं, पीपीटी से नहीं, क्या समझेंगे आप? पहले तो लेसन पढ़िए जो आपने डाउनलोड किया है। पीपीटी इज नहीं, पीपीटी होता है लेसन समझने के बाद आप पिक्चर्स देखते हैं। मैम स्टोरी से पढ़ते हैं इसको, ठीक है मैम। हाँ पढ़िए। हाँ The Doll's House is a beautiful short story written by Catherine Mansfield. Mansfield is the best artist in portraying the tribal activities of men and अबाउट women. द ऑथर मत पढ़िए, स्टोरी पढ़िए। A summary of the story, The Doll House. The Doll's House is one of the represented story of Catherine Mansfield, who is known for freshness for her approach and beautiful colored methods of presenting her ideas. The story basically gives us the deep insight into the manners and the behavior of aristocratic families. Uh, here, here she ridicules the negative philosophy of social discrimination caused by uneven division of wealth. It beautiful bring out the emotional relationship between three sisters and their friends. Moreover, it convey an idea that parents' attitude influence the children and deprive them of the natural goodness. In short, in life-like manner, Catherine tells us a hidden wise people belonging to higher society. From the very outset of the story, we see that the girls of Burnell family received a beautiful doll's house from Mr. Hay. It was a charming house, having a drawing room, a dining room, a kitchen room, and two bedrooms. All the rooms had tables, chairs, beds, and carpets. The rooms were painted in different colors. However, Kezia liked the lamp very much, which was placed in the dining room. The girls were very excited and wanted to show it.
to their friends. So the next morning they rushed towards the school, but the bell had rung, and they could not disclose it to the girls. However, at the playtime, Isabel family disclosed the news of the house, which spread like wildfire. It was decided that the two girls would see the house at one time. All the girls got an opportunity to see the doll's house, except the Calvi sister, as they belonged to a poor family. So everybody teased them, being the daughter for washerwoman and jail, but they were victim of the inferiority complex. However, Kezia wanted them to see the house, so she asked her mother for permission, but was harshly scolded. One day he saved the girls passing by the house. As the family was upstairs, she invited them to see the house. The Kelvis could not believe but stepped into the courtyard as they naturally wanted to see it. Suddenly, Aunt Burley comes there and ordered to them to leave the house in insulting manner. The Kelvis ran away from there with the feelings of shame, but they were happy to have seen the house. In the end, we can say that the writer has a beautiful shown the attitude of the rich against the poor. It is the parents of who are responsible for creating inequality in society. Children such as Acacia are scolded because they are innocent and cannot see the difference between the rich and poor. सिंपल सी स्टोरी है। अमीर लोग जो अमीर फैमिली के बच्चों को अलाउड नहीं होता है कि तुम गरीब बच्चों के से मिलो, बात करो। यही कहानी है, दो फैमिली के बारे में कहानी है, एक रिच है एक पुअर है, और किस तरह से मना की जाती है बच्चों को बात नहीं करनी है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो अडल्ट के बहकावे में आ जाते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि छोटी बच्ची जो थी उसको कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ मिला है तो दोस्ती मिली है और उस दोस्ती को आगे बढ़ाती है। उसको मतलब नहीं कोई रिच है कोई पुअर है, यही तो कहानी है। एक छोटी सी बच्ची है जिसको कोई मतलब नहीं है, बस दोस्ती से मतलब है। और बच्चे जो होते हैं करप्ट होते हैं, हो जाते हैं अडल्ट के द्वारा। यही कहानी है रिच एंड पुअर के बारे में। बहुत ही सिंपल कहानी है, उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तुम लोग के साथ ये है ना, तुम पीपीटी पर डिपेंड करते रहते हो, लेक्चर पर डिपेंड करते हो, और सेकेंड ईयर में जब आ गए हो तो कुछ अपने से खुद से भी पढ़ा करो। कंटेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आंसर है करिए क्वेश्चन आंसर। क्या कौन सी कड़ी समझ में नहीं आई बताइए? कहानी तो बहुत सिंपल है। Yes, ma'am. जबकि नहीं समझने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि पीपीटी भी है कंटेंट भी है, फिर क्या बात। बताइए क्या समझ में नहीं आया तो आप बताइए तो। मैं पीपीटी शेयर करे उससे थोड़ा उसमें भी कुछ तो एक दो टॉपिक था थोड़ा नहीं समझ थे पीपीटी में कुछ। पूछिए। Symbolism: the doll's house is the revolving symbol where everything in a short story happens. The
Beauty, color, and appearance of the dollhouse pertains to a human being's position in society. The lamp is a symbol of knowledge because it is shines the light of darkness of their town into the dolls. It is also represent the soil and the qualities of human being, its real nature. Short story characteristic character. The Burnell sister, the little Kelvis, the mother and the aunt to school girls. Action. The girls run to see the doll's house, the great in nobility. Conflict. The little Kelvis are not invited to see it. Them. Themes. Pride and prejudice. True and false feeling of friendship in nonsense. Kezia, Kezia, Kezia best friends Kelvis the poor children. Kelvis poor children's repetition. At the Kelvis eating out of the theater papers always by themselves, always listening. Burnell children with the upper class children. Isabel elder Burnell with her sister. Aunt Burley. Mother Mr. Burnell. At a glance, short story structure. Rising action takes place when Casey invited the little Kelvis sister to see the doll's house. Climax. When the finally little Kelvis sister see the doll's house, soon after they are expelled from the backyard by Aunt Beryl. Following action, the little Kelvis after that tremendous fright stop at the desk. Resolution: the little Kelvis bit satisfied to see the doll's house. Elsa was happy mainly because she saw the little lamp. Short story symbolism. The main symbol is the same time the title and the subject of the short story, that is the doll's house. There are many sects revolving around this symbol or subject, as if the doll's house was a gravitational point where everything in short story happens. Lamp that speak of the hope. Younger sister Kelvis and the school teacher. The poor little sister Elsa sought in joy. I saw the lamp. The Kelvis came near and beside them walked their shadows very long. Teji and Elsa on common grounds. Symbolism, signification of the lamp here in the working class. The rich decoration upper class, the symbol lamp working class. कुछ कनेक्शन इश्यू हो रहा है, तो फिर बार बार टेंशन स्ट्रेस हो रहा है या इंटरनेट अनस्टेबल अभी हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है. हेलो. यस मैम. हाँ, तो उसमें क्या समझ में नहीं आया? मैम एक बार पीपीटी से आप फिर से बता दीजिए तो मैम थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाता, समझ में आ जाता पूरे अच्छे से. बता तो दिए, रिच एंड पुअर के बारे में है. फैमिली अबाउट रिच एंड पुअर फैमिली. रिच पीपल मना करते हैं, क्या मना करते हैं? बच्चों को मना करते हैं, लेकिन सबसे छोटी वाली लड़की थी, उसको असर नहीं होता, वो बस इंसानियत के नाते जुड़ना चाहती है. यही तो है.
और एक लैम्प के बारे में कहा गया है। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है। कौन सी पार्ट समझ में नहीं आई बताइए? कहानी का क्या पार्ट समझ में नहीं आया? आप बताइए ना, राइटर क्या बोलना चाहता है इस टाइम, क्या मैसेज दे रहा है बताइए। तो अभी भी वही बताएंगे जो पहले बताए थे। तो जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमको पता चलेगा ना क्या समझ में नहीं आया। हेलो मैम। अब ऐसा तो नहीं कि पूरी कहानी नहीं समझ में आए। तो क्या समझ में, रिवीजन क्लास का मतलब क्या होता है? कोई कोई चीजें हैं जो समझ में नहीं आए। आप लोग प्रिपेयर करके आया करिए और बताया करिए क्या समझ में आ रहा है आप लोग। बात ये कि आप लोग पढ़ते नहीं है, मैम अगर मुझे समझ में कैसे बताइए। तो ऐसे तो कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा। हम तो बता दिए कि कोर्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। क्लास में वही होता है ना कि क्या समझ में नहीं आया, वही वही पूछेंगे आप। अब ये थोड़ी है कि फिर से पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। आपके लिए भी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप बताइए हमको। क्या बताना चाहता है इसमें ऑथर, क्या बोलना चाहता है? पहले मैम तो ये क्लास, समझना था मैम कि पहले आगे उसके पेरेंट्स क्या करने वाले हैं मैम। कोई सुनता नहीं है, इसीलिए इस क्लास से बहुत गुस्सा लगता है। कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। अब पवन बोल रहे हैं कि मैं क्लास में आया ही नहीं था, क्लास में आता कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे लोगों के लिए भाई बड़ी मुश्किल है। तो तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात, ये कैमरा बंद करके बैठे रहते हैं। मुझे क्या पता कि ये लोग हैं भी नहीं क्लास में। ऐसे नहीं चलेगा। अभी तो रिपोर्ट लिख के दे देंगे मेरा सिलेबस ओवर हो गया। क्लास में आकर के भी कैमरा नहीं ऑन है तो बेकार है। निकाल ही देते क्लास से, छोड़ो। हमको राज वर्मा को ही पढ़ाना है तो हम पढ़ा देंगे उसको। बाकी आप मूक दर्शक को नहीं पढ़ा सकते। और फिर टीचर नहीं पढ़ी, जो कुछ बोलेगा ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए। आप इस पवन से पूछिए कि इस सिलेबस का एक कहानी भी इसको पता है कि नहीं। इसे कुछ नहीं पता है। आप नीतू से पूछिए, मिल है वो लोग। पवन के अनुसार पूरी सिलेबस सेकेंड ईयर की हम फिर से लेकर शुरू करें। अब तुमको टास्क देते हैं, तुम गिफ्ट ऑफ मेजाइब पढ़ो और क्वेश्चन आंसर तुम सुनाओ हमको। अब यही होगा। आप लेसन पढ़िए, हमको सुनाइए। अब मुझे नहीं कुछ करना है, अब आपको करना। मेरा काम पढ़ाने का था, मैंने पढ़ा दिया। तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जानोगे क्या? ये लग्गी से घास होता है ना, कि लग्गी से घास गढ़ रहे हो तुम। मन में आए क्लास के, नहीं मन में आए नहीं किए। तुम्हारी मर्जी पे क्लास चल रहा है तो यही तुम्हारा हाल रहेगा। मुंह बना रहेगा क्लास में। मेरा क्या है, मेरा क्लास हो, मेरा काम खत्म। और मैंने एक दिन भी आपका क्लास मिस नहीं किया है, एक दिन छुट्टी नहीं। डेली का डेली क्लास चला है आप लोगों का। राजम्मा, आप हमको बताइए कि अभी आपने जो भी हमने पढ़ाया था डॉल्स हाउस में, जो भी मैंने पीपीटी में दिखाया था, जो भी आज आपने पढ़ा, वो सब मिला करके आप यू गिव अ प्रेजेंटेशन। तब मैं देखूंगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। चलिए बोलिए।
मैम एक डॉल हाउस है, वो शॉर्ट स्टोरी है मैम। उसमें उसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसको मतलब वो पहले सोसाइटी तो आप के बताइए कि डॉल्स हाउस में अमीरी गरीबी के बारे में बात है, हाई क्लास फैमिली, रिच फैमिली या लो फैमिली के बारे में बात है। बच्ची तो बहुत बाद की चीज है, पहले Yes, इंट्रोड्यूस तो करिएगा। मैम एक रिच फैमिली रहता है जो मतलब वो ऊंच नीच देखता है, मतलब कि वो छोटे क्लास वाले को बहुत मतलब हाँ क्रूरता नजर से देखता है उसमें। और उसी में एक उनकी एक बेटी होती है, आंट बेरली की बेटी होती है वो, छोटी सी बच्ची होती है, उसके लिए एक डॉल हाउस बना हुआ रहता है उसी घर में। तो बना वो हुआ कैसे रहता है? आप इसका मतलब कि इंग्लिश में समझ में आपको नहीं आता है राजवर्मा? मैं वही वो एक बना डाउट हो रहता गया है। था, इसलिए मैम कौन बोले थे दिया था, रिहाउ। कौन दिया था उसको? मैंने पीपीटी में साफ साफ कहा था कि ये डॉल कहाँ, डॉल्स हाउस कहाँ से आया। अब चैप्टर 1 ही समझ में नहीं आया तो चैप्टर एंड का क्या समझ में आपको आएगा? मैम इसीलिए बोले थे रिवाइज के लिए, क्योंकि और सब नहीं तो चैप्टर वो तो मतलब ऑलरेडी कंटेंट में दिया हुआ है, कहाँ से आया था ये। आप पीपीटी देखिए, अब फिर शेयर करिए। चलिए, पढ़ते हैं तो लगता है दिमाग ताका पर रख के पढ़ते हैं आप। आपको पीपीटी शेयर करना है। यस मैम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डॉल्स हाउस आर गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर है। इसका मतलब क्या होता है? डॉल्स हाउस को मैम गिफ्ट मिस्टर है ने गिफ्ट किया था। तो फिर तुम कैसे बोलते हो कि वो डॉल्स हाउस वहीं पर था? दिस इज वेरी सिंपल इंग्लिश। यस मैम। नहीं पढ़िए, जो स्लाइड्स में है उसको आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फोकस ही नहीं कहीं है। आपको इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ाया, इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप एग्जाम दीजिए, आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको इंग्लिश समझ में आए। उस स्लाइड को फिर से पढ़िए और बताइए इसका मतलब क्या। पवन आप बताइए इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में बताइए। चलिए, डॉल्स हाउस ए गिफ्ट फ्रॉम मिस्टर है। मिस्टर कहाँ मिस्टर पढ़ रहे हैं आप? ये मिस्टर है क्या? मिसेज यू डू मिस्टर नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस। मिसेज आईटी का सॉरी बच्चा है और कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप पढ़ेंगे? मैम, केयर नहीं किए थे। तो इसीलिए तो केयर नहीं किए रहते हुए तो कोई जॉब के लिए मत तुम लोग, फिर टैलेंट मत तुम लोग होना। तुम लोग को समझ ही में नहीं, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। सॉरी मैम। इसका हिंदी मतलब बताइए। डॉल्स हाउस अ गिफ्ट, डॉल्स हाउस एक गिफ्ट है जो मिसेज है को मिला है। मिसेस हे को मिला है। मिसेज है दिए हैं डॉल्स हाउस ए गिफ्ट को। मैम समझ किसको में नहीं दिए आ हैं, किसको दिए हैं? रहा। मिसेज है, हमको याद नहीं है मैम, पता नहीं किसको दिए हैं ऐसे, लेकिन मिसेज है ये दिए हैं रिवीजन गिफ्ट। कोई कहेगा कि रिवीजन क्लास चल रहा है। तुम लोग तो टीचर्स को भी बदनाम करोगे, कुछ लगता है कि मैम ने बताया ही नहीं है। अब सेम मैम। आप एक काम करिए, आप डॉल्स हाउस पढ़ के, पूरी पीपीटी पढ़ के समझ के नेक्स्ट क्लास में आइएगा। हम आपको होमवर्क यस देते मैम। हैं, नेक्स्ट। हम आपको यस असाइनमेंट मैम। देते हैं। पहले इसको पढ़ लीजिए, मेरे सामने पीपीटी। चलिए, जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया था आप प्रेजेंट कीजिए। चलिए, स्लाइड 1 पे आइए। चलिए, द डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैंसफील्ड। नहीं, राज वर्मा का नाम शेयर है। राज वर्मा, तुम चलो चलो बताओ। द डॉल्स हाउस बाय कैथरीन मैंसफील्ड। और द डॉल्स हाउस के मतलब डॉल्स हाउस के पोइटर हैं कैथरीन मैंसफील्ड। दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस कैथरीन मैंसफील्ड। दिस इज राइटर ऑफ दिस
bedroom and the red lamp. Lamp signifies the working class. इसका मतलब क्या हुआ? जो लैंप है मैम वो सिंबल है वर्किंग क्लास, जो लोग काम करने वाले होते हैं वर्किंग क्लास, उनका सिंबल है लैंप ये। और बाकी चीज डेकोरेशन और बेडरूम एंड रेड लैंप सिग्निफिकेंस मैम वही बेडरूम के अंदर जो ये रेड लैंप लगाया गया है ये वर्किंग क्लास जो हाई लेवल के क्लास के जो रिच मैन होते हैं उनके लिए सिंबल है, ये सब उनके सिंबल रेड है। लैम्प क्या सिंबल है और डेकोरेशन क्या सिंबल है बताइए? मैम ये मतलब एक सिंबल है जिससे पता चलता है कि ये वर्किंग क्लास के लोग हैं मैम, ये गलत सिंबल है रेड लैंप का। गलत गलत एकदम गलत। सिंपल लैम्प है। आप लोग नोट्स नहीं बनाते। दूसरी बात आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग लिखते नहीं है। इसलिए मैंने BSIT फर्स्ट ईयर को मैंने खूब डांट लगाई है। बताओ, मेहनत करो, PPT बनाओ, कंटेंट दो, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। जो सबसे अहम बात है तो आप लिखे नहीं है, तो आप क्या समझिएगा? आप कभी नहीं समझिएगा। ये मस्ती मस्खरी करने के लिए क्लास में मत आइए। When you cannot make notes, don't attend the class. क्या मैंने यही कहा था क्या? रिवीजन तो खूब डांटेंगे आप लोगों को हम। जब पूछ लगे एवरीबॉडी अंडरस्टूड, यस मैम, नेक्स्ट लेसन, यस मैम, तब क्यों नहीं पवन बोले थे कि मैम समझ में नहीं आया? हर बार पूछी गई है, अभी बता रहे और कल तुम नहीं बता पाओगे 100% श्योर। इसलिए आज भी नहीं लिख रहे आप लोग ना। आज बता दीजिए मैम, अगले क्लास में बता देंगे। ये बहुत गलत बात है। मतलब इतना लिटरेचर पढ़ाने में इतनी टेंशन कभी नहीं हमको हुई। बाकी बच्चों को भी तो पढ़ा है ना, 2016 बैच, 2017, 2018, 2019। ये तो पहला बैच है जिसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, एकदम डिब्बा गोल। किताब दे दिया गया, PPT दे दिया गया। आप जाके अपने सीनियर से पूछिए, BCA and BSIT, कोई लेसन ऐसा नहीं है जो लोग बोलेंगे समझ में नहीं आया, बिकॉज दे वर अटेंटिव। जो कुछ भी हम बता रहे हैं, अगले क्लास में अगर नहीं मिला आंसर तो हम क्लास उठा दे रहे हैं, नहीं लेंगे क्लास। The simple lamp represents working class. The decoration represents high class, upper class. Simple lamp lower class, decoration upper class. पूरी की पूरी स्टोरी तो इसी दो चीज में है। और मेन चीज आप समझ में नहीं आया, याद नहीं है। पवन को याद नहीं है, नहीं याद है तो फिर क्लास से बताया करो। चलिए बताइए क्या लिखे हैं। अब आप स्टैंडर्ड 1 में तो नहीं है कि एक एक लाइन लिखवाएंगे और कॉमा फुल स्टॉप कराएंगे, बोलेंगे हाँ क्या लिखे बता बच्चे। सेकेंड ईयर हो चुके हो, 5-6 महीने में विप्रो आएगी तो जॉब लग जाएगी तेरी। अब बोलो, गुस्सा लग रहा है। मैम जो सिंपल लैम्प होता है वो मतलब लोअर क्लास को शो करता है और जो डेकोरेशन होता है वो अपर क्लास को शो करता है। शो नहीं करता, सिग्निफाई कर रहा, प्रतीक है। सिग्निफाई, यस मैम। प्रतीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। लैम्प, द सिंपल लैम्प सिग्निफाइज द वर्किंग क्लास। इसका मतलब क्या है? डेकोरेशन सिंपली सिग्निफाइज द अपर क्लास। आगे बढ़ो। पूरी कहानी डॉल्स हाउस के बारे में। अब पता नहीं कि गिफ्ट है कि क्या है, ये मिस्टर है कहां से बीच में आ जाते हैं। अब पता ही नहीं किसको गिफ्ट दिया गया है। पूरी कहानी खत्म हो गई है, पवन को नहीं पता कि किसको गिफ्ट दिया गया। एब्सेंट थे मैम, केसिया को कुछ दिया गया था पता ही मैम। नहीं मतलब है एब्सेंट थे। चलिए बताइए, राज वर्मा, इट इज योर स्लाइड, बताओ। डॉल्स हाउस गिफ्ट फ्रॉम मिसेस है। जो डॉल्स हाउस है वो मिसेस है के द्वारा गिफ्ट किया गया था केसिया को। मिसेस हे कौन है और क्यों दिया उन्होंने?
पूरा डिब्बा इन लोग का गोल है। अब कहीं से भी आप पढ़ के आइए, प्रेजेंटेशन दीजिए। रिविजन क्लास करा रहे हैं ना, तो तेरा रिविजन तो हम कराएंगे तुम लोग। तुम लोग को कड़ी कहाँ से समझ में आएगा। लिटरेचर की किताब में रख देती हूँ लाइब्रेरी में, जब कभी आया करो ना तो किताब लेके पढ़ा करो, पूरी कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ो, पूरी स्टोरी पढ़ो और मुझे बताओ उस कहानी के बारे में क्या पढ़ा। ठीक है। तो मिसेस हे विजिट करने आई थी, जो रिच फैमिली का, उन लोगों का नाम क्या था, रिच फैमिली का लोगों का नाम बताइए। नहीं पता। तो कैरेक्टर के नाम भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। मैम एक आंट ब्राइल थी और एक इसाबेल, ऐसे ही कुछ नाम था, 2-3। एक काम करो, तो पढ़ के आना, ठीक है। यस मैम। ऐसे नहीं चलेगा, पूरा भार तो मुझ पर नहीं दे सकते हो। मैंने एक बार समझा दिया था, दोबारा दोबारा हम क्यों करेंगे। दोबारा तो तुम दोगे प्रेजेंटेशन, पढ़ के समझ के आओगे। अब तो रिविजन क्लास तुमको चाहिए ना, तो यू रिवाइज एट होम एंड कम एंड प्रेजेंट हियर। तो आपकी रिविजन भी हो जाएगी और आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। ठीक है। यस मैम। तो मिसेज हे वो लेडी थी जो मुझसे मिलने आई थी, और जब वो वापस गई थी तो उन्होंने घर जाकर के ये डॉल्स हाउस दिया था, इन लोगों को भेजा था वहां पे। ठीक है। उसकी ओरिजिनल स्टोरी तुम पढ़ो, यहाँ पर लाइब्रेरी में किताब है, उससे पढ़ो, गूगल से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, रीड द ओरिजिनल स्टोरी। ठीक है। यस मैम। चलिए, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, लिटरेचर पर नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं कर पाइएगा, बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो मिसेज ए कौन थी? पवन झा, पवन कुमार, बताओ। मिसेज है जो गिफ्ट दी थी मैम। हाँ। अभी भी नहीं लिखा है, मैंने अभी बताया ना, मैंने अभी जस्ट बताया है। वो नहीं चलेगा काम ऐसे। अभी भी नहीं लिखा, देखो। मैम मिस्टर हे थी, वो विजिट की हुई थी, अपर क्लास फैमिली में आई थी मिलने के लिए। मिलने के बाद उन्होंने वहां से गिफ्ट शेयर भेजा हुआ था डॉल्स हाउस को। ये पवन के दिमाग में क्यों इतना मोटा बुद्धि का पवन क्यों इनको समझ में नहीं आता इसको? हमको इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं मैम बेसिक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मिसेज है कौन है ये सब। अभी हम बताए हैं, अभी राज वर्मा फिर बताए हैं। चलो यार, तुम्हारा क्लास 5 मिनट भी और लेंगे, मेरा दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। एक बार पवन झा फिर से बता दो इसको तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो बताओ, हिंदी में बताओ, जिस भाषा में इसको समझ में आ जाए। चलो। मिस्टर हे जो थी वो विजिट करने के लिए आई थी यहाँ पे। मिस्टर है कहाँ से यहाँ पर आता है? तुम लोग को मिस्टर मिसेस में कोई फर्क नहीं है। मिसेज है मैम, मिसेज है बोले मैम, मिसेज है विजिट करने के लिए आती हैं, और वो जब विजिट करके किसके जाती हैं घर अपने में घर। आती? पवन को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे घर गई थी या मेरे घर गई थी। इसको नहीं कुछ पता चल रहा है कि कौन थी, क्यों आई थी यहाँ पे। तुम भी झेल ही रहे हो पवन, ये राज वर्मा, हम भी झेल रहे हैं। ये पवन तो सब कुछ झेला दे रहा है आज। ये क्लास को आगे नहीं बढ़ने देगा। समझ लो, कभी कोई क्लास नहीं किया ये और रिवीजन कर रहे हो तो ये रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हम कह रहे हैं कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब बताने के बाद ये नहीं लिख रहा है। हम क्या बताएं, हम क्या करें? बता दो एक बार फिर से इसको।
मिसेज है जो है विजिट करने के लिए आती है यहाँ पर इन लोग के पास, जब विजिट करके वापस तो यहाँ जाती पे इन लोग बहुत नहीं समझ रहा है ये सब बात, इसको डिकोड नहीं करता। किनके पास आई थी विजिट करने के आंट लिए, ब्रेल वो है ना, बताओ उनके ना। पास आए थे, रुको बताते हैं तुमको। यहाँ पे इन पे इसको नहीं डिकोड कर पाए। देखो आंट ब्रेल के पास आई थी वो मिलने के लिए और मिसेज बर्नेल के पास। अब आया समझ में? ओके ओके, थैंक यू। मेरे को कुछ पता ही नहीं, एब्सेंट से था, क्या पता रहेगा यार। तो फिर ऐसे ही तुम बोर हो गए सबसे, और सबसे बोर हो गए सबको बोर करोगे तुम। मतलब एक साइड में 30 मिनट, माय गॉड। ये पीपीटी समझिए, देखिए, उसका ओरिजिनल स्टोरी पढ़िए, और रिवीजन करना है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप कुछ बोलेंगे, कुछ हम बोलेंगे, सिर्फ संजना मैम नहीं बोलेंगी आप यहाँ पर। बिकॉज दिस इज a रिवीजन क्लास, यू नीड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, ठीक है? और जहां कहीं कुछ अटक भटक जाओगे वहां तो फिर तो आप कहेंगे, ठीक है? चलो, यस मैम। हाँ, पवन झा समझ में आ गया ना? पवन, कि पवन झा नहीं हो तुम, हो पवन हो। मिसेज है हाई क्लास फैमिली के फ्रेंड थी, अपने दोस्त से मिलने आई थी जिसका नाम है मिसेस ब्रोनेल। अभी भी नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, ये नहीं लिखेगा तो सुधर जाने दो, तुमको तो मार मार के सिखाएंगे। लिख लिया मैम। और जब वो वापस जाती हैं, अब कैसे होता है, हम लोग कहीं मिलने जाते हैं तो बच्चों के लिए मिठाई ले जाते हैं, कुछ गिफ्ट ले जाते हैं ना। यस मैम। यस मैम। उसी तरह से वो भी सोची कि इतने दिन, 2-3-4 दिन रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों के लिए हम कुछ गिफ्ट भेजते हैं। तो जब वो वापस जाती हैं तब वो एक बहुत बढ़िया सा डॉल्स हाउस भेजते हैं। वो डॉल्स हाउस बहुत अच्छा होता है, बहुत डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बहुत लाविश है, बहुत भव्य तरीके से डेकोरेशन है। लेकिन डाइनिंग टेबल पर एक लैम्प है जो कि बहुत ही सिंपल है, मतलब सब बहुत रिच डेकोरेशन, और एक डाइनिंग टेबल पर लैम्प है, वो सिंपल है। तो सिंपल जो है वो है वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, and the upper class, the rich decoration is represented by the upper class. मतलब heavy decoration, symbol of upper class, simple lamp signifies the working class. Read the story and come again, we'll discuss. Okay? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम।